اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج دوسرا درس اخلاق ہے اور ہر چہارشنبے کو نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے 9 بجے رات میں لائیو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور اچھے اخلاق پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج کچھ ایسے صفات آپ کی خدمت میں لائے ہیں کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور اس پر توجہ کرنا اور نظر رکھنا بہت لازم ہے۔ کسی نے ایک حکیم سے پوچھا کہ اس دنیا میں جیتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا مرنے کے لیے۔ پوچھا اور مرتے کیوں ہیں؟ کہا جینے کے لیے۔ اس لیے کہ جو بھی جیتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی جیتا ہے، بس یہ ہے کہ اپنی اپنی نیت کا فرق ہے۔ انسان جیتا ہے بہت سی چیزوں کے لیے، کوئی اس لیے چاہتا ہے ہم جئیں اور جئیں اور جئیں کہ بچوں کے بھی شادی نہیں ہے، ان کی شادی ہو جائے، گھر نہیں بنوا پائے ہیں گھر بن جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تھوڑا سا اور زندہ رہ جائیں۔ ان کو یہ سوچ کر نہیں جینا چاہتا کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے تو تھوڑا سا جی لیں تاکہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت تھوڑی سی اور زیادہ کر لیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی زیادہ ملے گا۔ تو مرنے کی تیاری کے لیے جینا بہت کم لوگ چاہتے ہیں، اور جب تک انسان اس دنیا سے جائے گا نہیں، مرے گا نہیں، تب تک دوسری زندگی مرتا کیوں ہے؟ جینے کے لیے۔ یعنی انسان جب مرے گا تبھی جا کر وہ آخرت کی ابدی اور حقیقی زندگی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک کیوں انسان گھبراتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے؟ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، وہ اس دنیا سے جانے لگا جب تو اس نے اپنے بچوں سے یہ وصیت کیا کہ دیکھو جب ہم مر جائیں تو ہمیں نیا کفن نہ دینا، پرانا کفن دینا۔ تو بچوں نے کہا بابا آپ یہ کیسے کریں، ہم آپ کو پرانا کفن کیوں دیں گے، ہم تو آپ کو ریشم اور سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کفن انشاءاللہ لگا کر دفن کریں گے۔ اس نے کہا یہ سب حماقت نہ کرنا، مجھے پرانے کفن میں دفن کرنا۔ کہا کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو کیا نہیں ہے، حساب کتاب بہت سخت ہونے والا ہے قبر میں، تو ذرا پرانا کفن مجھے دینا تاکہ جب فرشتے سوال جواب کے لیے آئیں منکر نکیر تو پرانا کفن دے کر سوچیں کہ لگتا ہے غلطی سے کسی پرانے مردے کی قبر میں آ گئے ہیں، اس کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ تو جینا ہر انسان چاہتا ہے، مرنے سے ہر انسان ڈرتا ہے، لیکن نیت کیا ہے اور جینا کیوں چاہتا ہے؟ بہت سے انبیاء کرام کے یہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ بھی جب مرنے کا وقت آیا ہے تو جینے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو جینا کس لیے ہے یہ اہم ہے، اور ہر انسان لمبی زندگی کا طلبگار ہے۔ ہم بھی آج اسی پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو لمبا کر دیتی ہیں اور عمر کو طولانی بنا دیتی ہیں۔ ایسے تو بہت سی چیزیں دنیاوی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور حدیث میں بھی مل جاتی ہیں، ظاہری چیزیں ہیں۔ مثلا انسان کہا جاتا ہے کہ بھئی بادام کھائیے تو مثلا آپ کے مسلس جو ہے وہ مضبوط رہیں گے، دماغ مضبوط رہیں گے، خلیے مضبوط رہیں گے، اور پستہ کھائیے، اس طرح سے مثلا انجیر کھائیے، زیتون کھائیے، دودھ پیجیے، سیب کھائیے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو۔ مثلا بادام کھائے انسان پیٹ میں درد ہونے لگے، انجیر اور زیتون کھائے مثلا ہوتا ہے طبیعت خراب ہو جائے، اور اسی طریقے سے سیب کھائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کچھ انجیکشن وغیرہ ہو تو پتہ چلا کہ الٹا ہی اس نے اثر کر دیا۔ لیکن لمبی زندگی اور طولانی حیات کے لیے اور ایک لمبی زندگی جینے کے لیے احادیث سے معصومین علیہ السلام میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ انسان اگر اس پر عمل کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی عمر کو، اس کی ایج کو اور بڑھا دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اپنے اس درس اخلاق میں کہ وہ کون سی اخلاقی صفتیں ہیں کہ جو انسان اگر اپنا لیتا ہے تو خداوند عالم اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم اسی پر روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو احادیث میں وارد ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمر میں اضافہ کرنے والے یہ 6 کام ہیں، 6 چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو لمبی کر دیتی ہیں۔ وہ پہلی چیز کیا ہے
पहली चीज है तहारत। तहारत ऐसी चीज है कि इसके बारे में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अनस से फरमाते हैं पैगंबर इस्लाम, अक्सिर मिन अत्तहूर यजीदुल्लाहु फी उम्रिका, कि तहारत का बहुत ज्यादा ख्याल रखो, बहुत ज्यादा तहारत का ख्याल रखो। तो क्या होगा, अगर ज्यादा तहारत करेंगे, ज्यादा पाकीज़ा रहेंगे, वजू के साथ रहें, गुस्ल के साथ रहें, तयम्मुम के साथ रहें, नजासत से दूर रहें, तो क्या होगा, यज़ीदुल्लाहु फी उम्र का, तो अल्लाह तुम्हारी उम्र को ज्यादा कर देगा, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता करेगा। व इन इस्तताअता अन तकूना बिल्लैल वन नहार, और अगर तुमसे मुमकिन हो सके तो रात और दिन में कैसे रहे, अला तहारतिन फफअल, अगर तहारत पे रह सकते हो तो ऐसा करो। क्यों, फ़इन तकूना फ़इन्नका तकूनु इज़ा मित्ता अला तहारतिन मित्ता शहीदा, क्यों तहारत पर इतनी ताकीद है कि अगर तुम हालते तहारत में मर भी गए तो कैसे मरोगे, शहीद मरोगे। लिहाजा हम अपनी जिंदगी का हिस्सा तहारत को बना लें। जब जाते हैं मुंह धुलने के लिए, हाथ धुलने के लिए जाएं, वजू कर लें, अपनी आदत बना लें, दिन में वजू करें, रात में वजू करें, जितना हो सके बावजू रहें। तो एक तो चीज है तहारत के इंसान। तो अब आप यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर एक ये भी सोचने वाला है, कुछ लोग कहते हैं भाई इमाम की इतनी उम्र क्यों हो गई। जो इंसान खुद अपनी तहारत का खुद ख्याल रखे उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो जिसकी तहारत का ख्याल खुदावंद आलम रखने वाला है और जिसकी तहारत अल्लाह के इरादे से मंसूब हो जाए, तो भला उसकी उम्र और उसकी एज के बारे में सवाल करना ही बेकार है। तो सबसे पहली चीज जो इंसान की उम्र को और हयात को तुलानी बनाती है वो है तहारत। और ये मैंने हदीस पढ़ी, और ये वसाइल शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 383 में ये हदीस मौजूद है। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या है जो इंसान की जिंदगी को तुलानी बना देती है और उसकी उम्र को बढ़ा देती है, दूसरी चीज है माँ बाप को खुश करना, वालिदैन को खुश करना। जो अपने वालिदैन को खुश करता है खुदावंद आलम उसकी जिंदगी को बढ़ा देता है, उसकी जिंदगी में बरकत अता कर देता है। देखिए ये हदीस है छठे इमाम से, काला अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, व इन अहबब्ता अन यज़ीद अल्लाहु फी उम्रिका फसर्रि अबवैक, फरमाते हैं कि व इन अहबब्ता, अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र को बढ़ा दे तो क्या करें, फसर्रे अबवैका, अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को खुश रखें। ये बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी जिल्द नंबर 71 सफ़ा नंबर 81 में फरमाते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी उम्र अल्लाह लंबी कर दे और अल्लाह आपकी हयात को तुलानी कर दे, हयात और जिंदगी में बरकत हासिल हो, तो माँ बाप को खुश करें, वालिदैन को खुश करें। अब खुश करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो इंसान खुद सोचे कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि हमारे वालिदैन खुश रहें, हमारे वालिदैन हमसे मसरूर रहें और खुश रहें। तो खुदावंद आलम भी यानी हदीस में जिसने वालिदैन को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने वालिदैन को नाराज कर दिया उसने अल्लाह को नाराज कर दिया। इसीलिए अहादीस में ये कहा गया है कि अगर किसी के माँ बाप किसी की तरफ गुस्से की नजर से देखें, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो गुस्सा करते हैं या कोई, या उन्होंने कुछ कह दिया, बोल दिया या कुछ कहा, तो हम उन पर गैज़ गज़ब नहीं कर सकते। मन नज़रा इला वालिदैहि नज़रा माक़ितिन, अगर कोई अपने वालिदैन की तरफ तिरछी नजर से देखता है, टेढ़ी निगाह से देखता है, वलौ काना ज़ालिमैन, और चाहे वो मतलब उन्होंने जुल्म ही क्यों ना किया हो, अगर कोई ऐसा करता है तो लन यक़बलल्लाहु सलातहु, या ला यक़बलल्लाहु, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता है। तो अगर कोई ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत हो तो उसे ये चाहिए कि वो क्या करे, वो वालिदैन को अपने खुश करे, अगर जिंदा हैं तो भी खुश करने की कोशिश करे, और अगर किसी के वालिदैन एक दुनिया से वफात पा चुके हैं तो उनके लिए ईसाल सवाब का एहतमाम करके उन्हें खुश करें, जितना हो सके फातिहा, तिलावत कुरान करीम वगैरह के जरिए से उन्हें खुश रखें। और उसके बाद फिर देखते हैं हम कि तीसरी चीज क्या है, घर वालों के साथ
नेकी करना, घर वालों के, देखिए वालिदैन के साथ नेकी, सिर्फ वालिदैन नहीं, अब क्या, ये इस्लाम है, सबको लेके चलने का नाम है दीन, सबको लेके चलने का नाम है इस्लाम का। घर वालों के साथ नेकी करना, जो अपने घर वालों के साथ नेकी करता है, अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा सलूक रखता है, अच्छे तरीके से मेल जोल रखता है, तो उसके लिए क्या फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है, मन हसना बिर्रुहु बिअहल बैतिही मुद्दा लहू फी उम्रिही, कि जिस जो भी अपने अहले बैत, अपने घर वालों के साथ नेकी करता है, तो क्या होता है, मुद्दा लहू फी उम्रिही, उसकी उम्र को अल्लाह बढ़ा देता है, उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाता है, उसकी उम्र में बरकत अता कर दी जाती है। तो तीसरी चीज जो है वो घर वालों के साथ नेकी करना, घर वालों के साथ जो नेकी करता है खुदावंद आलम उसकी उम्र को बढ़ा देता है। ये भी हदीस उसूल काफी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 105 पर मौजूद है। और देखें अब यहाँ पर पॉइंट एक ये नजर आता है कि उम्र में बरकत होती है। किसकी उम्र में बरकत होती है? जो अपने अहले बैत, अपने घर वालों के साथ नेकी करे। तो सोचने की बात है कि जो अपने अहले बैत के साथ नेकी करता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, जो रसूल के अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ नेकी करेगा उसकी उम्र कितनी बढ़ जाती है? इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसे मौत नहीं आती, और अगर मौत आ भी जाती है तो बच के नहीं जाती। मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। तो अब आइए देखते हैं कि इसके बाद कौन सी चीज, चौथी चीज कि अगर इंसान इसे अपना ले और इसे अंजाम दे तो खुदावंद आलम उसकी उम्र को बढ़ा देता है। वो चौथी चीज है सिले रहम, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना। देखिए वालिदैन, घर वाले, अब ऐसा नहीं सिर्फ अपनी फैमिली, सिर्फ अपने माँ बाप, अपने अहलो अयाल, बल्कि सिले रहम, रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करना, सिले रहम। क्या फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व अन युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहमहू। फरमाते हैं कि जो दोस्त रखता है, जो ये चाहता है, क्या चाहता है, जो ये चाहता है कि उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाए, उसके रिस्क में इजाफा कर दिया जाए, तो फिर वो क्या करे। और दूसरी चीज क्या, दो चीजें यहाँ पर देखिए, दो चीज बयान की, जो ये चाहता है कि उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाए, असरही, और उसकी मौत को भुला दिया जाए, उसकी मौत को भुला दिया जाए, नहीं जिंदगी में बरकत ही बरकत अता कर दिया जाए, तो वो क्या करे, फल यसिल रहम, वो अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक बढ़ाए, उनसे राबता बरकरार रखे, उनसे मेल मोहब्बत अपनी बनाए रहे। तो खुदावंद आलम क्या करता है, उसकी एज को, उसकी उम्र को बढ़ा देता है। आज देखें क्या हमारे मुआशरे की जो हालत है, अपनी फैमिली में, हर इंसान के यहाँ अपनी फैमिली में पता चला कि किसी इस बात पर लड़ाई है, उस बात पर लड़ाई है, ये बात हो गई, वो बात हो गई, आना जाना बंद है, बोलचाल बंद हो गई, क़त्ए रहम, इस पर खुदावंद आलम ने लानत किया है कुरान में 4 मरतबा। जो क़त्ए रहम करता है, रिश्तेदारों से तर्क ताल्लुक करता है, कहा कि अल्लाह रहमत की नजर से उसे देखता है, सबसे ज्यादा रहमत की नजर से उसे देखता है जो ताल्लुक को उस्तवार करने में और ताल्लुक फिर से बनाने में पहला कदम बढ़ाता है, जो पहल करता है। अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि नहीं, जब वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे, वो आएंगे तो हम जाएंगे, उनकी गलती है, उन्हें चाहिए कि वो माफी मांगे। लेकिन हदीस में क्या है कि खुदावंद आलम सबसे ज्यादा रहमत की नजर से उसे देखता है, उस बंदे को देखता है कि जो राबता बनाने में पहल करता है। और हदीस में भी है कि उसके साथ सिले रहम करें जो आपसे क़त्ए रहम करें, यानी अगर किसी ने आपकी रिश्तेदारी में आपसे तर्क ताल्लुक कर भी लिया है, फिर भी आपका फरीजा ये है कि आप उसकी मदद करें, उसके बारे में हालचाल लेते रहें, क्या परेशानी है या क्या मुश्किलात है, यानी राबता बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए ये इसमें कौन लोग
आगे आ सकते हैं। इसमें जो नए लोग हैं, जैसे नौजवान हैं, बच्चे हैं, इस टाइप के लोग हैं, अगर इस तरह की बातें हैं कहीं पर, तो अब इन लोगों को चाहिए कि वो पुरानी चीज़ों को खत्म और आपसी मेल-जोल और मोहब्बत को और ज़्यादा आगे बढ़ाएँ और परवान चढ़ाएँ। हदीस में ये भी मौजूद है कि अगर कोई सिले रहम करता है और उसकी उम्र खत्म होने वाली होती है, तो खुदावंद आलम उसकी उम्र को 30 बरस या बाद हदीसों में 31 बरस तक खुदावंद आलम बढ़ा देता है। यानी अगर किसी की उम्र जो है वो खत्म होने वाली, तो खुदावंद आलम उसे 30 बरस तक बढ़ा देता है। और इसी तरीके से अगर कोई क़त्ए रहम करता है, तो खुदावंद आलम उसकी उम्र को इस तरीके से घटा देता है और कम कर देता है। लिहाजा रिश्ता और बहुत सी इस लिहाज से साल मुहिम नहीं है, कई साल, यानी बरकत खुदावंद आलम अता करता है। और अगर किसी की उम्र कम रह भी गई, तो भी उसे वो बरकतें अता करता है जो लंबी उम्र वाले भी वो बरकतें हासिल नहीं कर पाते हैं। ये हदीस भी देखिए बिहारुल अनवार में अल्लामा मजसी लिखते हैं, जिल्द नंबर 71 सफ़ा नंबर 89 पर 71 जिल्द नंबर है। और अब देखते हैं कि इसके बाद वो कौन सी चीज है कि जो इंसान की उम्र को बढ़ा देती है और उम्र को लंबा करती है। वो है हुस्ने नीयत, नेक नीयत का होना, अच्छी नीयत का होना, कि जिसका फुकदान हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा है। अच्छी नीयत नजर नहीं आती, सारी चीजें तो हो रही हैं लेकिन नीयत का फुकदान है। अच्छी नीयत वाले बहुत कम आपको नजर आएंगे। हुस्न नीयत से उम्र का क्या ताल्लुक है? इमाम फरमाते हैं वक़ाल सादिक अलैहिस्सलाम वमन हसनत नियतुहु, जिसकी नीयत अच्छी हो जाए, ज़ीदा फी उम्रिही, खुदावंद आलम उसकी उम्र में इजाफा फरमा देता है। और बाद हदीस में है कि फी रिज़्क़िही, और अल्लाह उसकी रिज़्क़ में भी उसके इजाफा फरमा देता है। इसीलिए कहते हैं जैसी नीयत वैसी बरकत। और ये हदीस भी आपको जिल्द नंबर अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 66 और सफ़ा नंबर पेज नंबर 408 पर ये हदीस आपको मिल जाएगी। देखिए नीयत का ताल्लुक कितना ज्यादा है रिस्क की वुसअत पर और इसी तरीके से उम्र के इजाफे पर। नौशेरवान आदिल बादशाह एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसने जब उसे वो लोग थक गए शिकार करते हुए, एक जगह पर देखा कि एक झोपड़ी है, खैमा लगा हुआ है, वहां पर ये अपने साथियों के साथ जाता है। प्यास के मारे इन लोगों की हालत खराब थी, तो कहा कि कुछ मिलेगा हमें, तो एक ज़ईफ़ा निकली वहां से, उसने कहा बिल्कुल मिलेगा। और उसने जो है वो जाती है और दूध लेकर आती है, यानी जानवर के पास जाती है, वहां से दूध लेकर आ जाती है। और उसके बाद लाने के बाद ये कहती है लीजिए आप लोग ये पी लीजिए, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे जो बादशाह सलामत हैं उनकी नीयत में कुछ फतूर है, उनकी नीयत कुछ खराब हो गई है। तो एक मतलब नौशेरवान को बड़ा तज्जुब हुआ, यही बादशाह था। तो इसने पूछा, चूंकि वो पहचानती नहीं थी, पूछा कि ये आप कैसे कह रही हैं कि बादशाह की नीयत में कुछ खराबी आ गई है? कहा इसलिए कि इसके पहले जो हमारे जानवर थे या हमारी जो बकरी थी, वो दूध ज्यादा दिया करते थे, लेकिन आज जब मैंने आपके लिए सोचा कि दूध लेकर आऊं, तो आज थोड़ा सा दूध हासिल किया मैंने उससे, तो मैं समझ गई कि कुछ मसला है। कहा ये कैसे पता? कहा जब हमारे बादशाह की नीयत अच्छी होती है तो मुल्क में बरकत होती है, और जब बादशाह की नीयत खराब होती है तो मुल्क में बरकत खत्म होने लगती है। नौशेरवान आदिल ने कहा कि तू पहचानती है कि मैं कौन हूँ? कहा कि नहीं मैं तो नहीं पहचानती हूँ। कहा कि सुन, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ और नौशेरवान आदिल हूँ। इतना सुना था कि वो औरत जो है वो गिर पड़ी कदमों पे, कहने लगी अरे हुजूर, और आप मुझे पहचानते हैं? कहा कि नहीं मैं तो। कहा कि मैं एक पागल ज़ईफ़ा हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मुझे कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते भी हैं कि मुझे ज्यादा बोलने की आदत है और मैं ऐसे ही किसी टाइम रवानी में कुछ बोल जाती हूँ। तो बादशाह ने कहा नहीं, ये रवानी में तूने नहीं बोला है, ये तूने बहुत ही बुलंद गुफ्तगू किया है। हकीकत यही है जो तूने कहा है, इसलिए कि जब मैं एक जंगल में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर लोगों के पास बहुत ज्यादा जानवर हैं और दूध का बहुत बड़ा यहाँ पर एक जखीरा है लोगों के पास। तो मैंने सोचा कि जब इतने ज्यादा जानवर इन लोगों के पास है और हुकूमत में अगर थोड़ा सा टैक्स इन लोगों के ऊपर लगा दिया जाए
तो कोई ज्यादा इन लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और हुकूमत का भी फायदा होगा। तो मैंने ये सोचा था कि थोड़ा सा टैक्स इन लोगों पर बढ़ा दूंगा, लगा दूंगा, लेकिन अब मैं नहीं लगाऊंगा। तो नीयत का असर ये होता है, बरकत और बेबरकती। हमेशा अपनी नीयत को अच्छा रखें, हुस्न नीयत, इंशाअल्लाह ताला उम्र में भी बरकत और रिस्क में भी बरकत इंशाअल्लाह ताला होगी। और छठी चीज जो इंसान की जिंदगी में इजाफा करती है, इंसान की जिंदगी को तुलानी कर देती है, वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ियारत मज़लूम करबला। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुरू शिअतना बिज़ियारत क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, कि मेरे शिया जाएं, कहाँ जाएं? ज़ियारत क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों? फ़इन्न इत्यानहु यज़ीदु फ़िर रिज़्क़, इसलिए कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बजा लाना क्या करता है? यज़ीदु फ़िर रिज़्क़, रिज़्क़ में ज्यादती करता है, रिज़्क़ में इजाफा करता है। ज़ियारत पर जाना रिज़्क़ में इजाफे का सबब है। व यमुद्दु फ़िल उम्र, और इंसान की उम्र बढ़ जाती है, इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है। और इसके आगे हदीस थोड़ी सी बढ़ जाती है, व यदफ़उ मदाफ़िअस्सू, और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुराइयों से और मुश्किलात से इंसान को रोकती है, बुरे हवादिस से महफूज रखती है। व इत्यानहु मुफ्तरज़ुन अला कुल्लि मुमिनिन युक़िर्रु लहू बिल इमामति मिनल्लाह, और हर वो मोमिन के जो ये सोचता, ये जानता, जिसका अकीदा ये है कि इमामत का मनसब खुदावंद आलम की तरफ से है, उसके ऊपर फर्ज है कि वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बजा लाए। और जो नहीं जा सकता ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, उसे ये चाहिए कि वो जिस जगह पर हो वहीं से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बजा लाए। जो कम से कम ज़ियारत है कि जिससे आप ज़ियारत का सवाब हासिल कर सकते हैं। अगर न जा सके, लंबी ज़ियारत न पढ़ सके, तो कम से कम इतना ज़रूर कह दें, अपनी छत पर जाकर या सहने खाना में जाकर, खुली जगह पर, बंद जगह पर, जहाँ पर भी है, करबला का रुख करके कह सकते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, मेरे मौला हुसैन आप पर हमारा सलाम। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की होगी। खुदावंद आलम हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और इन तमाम सिफतों को अपनाने की हमें तौफीक दे। खुदावंद आलम इस कायनात से तमाम अमराज को दूर फरमाए, और खुदावंद आलम तमाम वो अफराद जो मखरूज उनके कर्ज़ों को अदा फरमा दे, तमाम बीमार अफराद को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। खुदावंद आलम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमाए और हम सबको इमाम के आवाम अंसार में शुमार फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।